तो आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ से हैं, मतलब से वैसे जानने से मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी, आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है। लवली मैम आप कहाँ से? हेलो अविशी मैम। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Hi, good morning. इंदौर से हैं। आप इंदौर से ही हैं? हाँ, अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। हम थोड़ी देर में ही शुरू कर देंगे सेशन। जैसे ही 11:30 होंगे वैसे ही हम सेशन शुरू कर देंगे। वी आर वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन। तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोग सब पेरेंट्स हैं या मतलब स्टूडेंट्स भी हैं? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके। सो लाइक व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, निकिता मैम? मैम नॉलेज के लिए, सीखने के लिए ही। हेलो अंजू मैम। Ajit sir, if you permit, shall we start the session? Yep, Okay. it's all yours. Thank you, sir. So, dear parents, greetings from EdTalk. Thank you for joining us on this Sunday morning. I'm Anuradha Kher. I'm CEO of EdTalk Consulting. EdTalk Consulting is a firm which has been actively engaged in benefiting children through school education and parent education. We are very happy to have you with us today, and to honor your presence, we will send certificate of participation to your email addresses. To make this session more fruitful, we expect courtesy from your participants. Please keep your cameras on during the session. If you have any question, keep it till the end. Raise your hand or you may put your question in the chat box. Our experts will try to answer all the questions within the session, but if some questions are left, we will personally contact you to answer them. Now, parenting, as we knew, has become very challenging in 21st century. Our Gen Alpha are the most advanced generation with most exposure to information ever before. We millennials and Gen Zs are finding it very difficult to deal with the generation, which is way ahead of all the developmental milestones set. Therefore, we need to look at our role as parents in completely new perspective. To understand parenting, we have with us today Mr. Ajit Kumar, who is a renowned psychologist and a founder of NIAS Epigenetic Wellness Center at Indore. He hails from defense background with 15 years of rich experience with Indian Navy. He specializes in many therapies such as DBT, REBT, mindfulness, past life regression, clinical hypnotherapy, and many more. Welcome, sir. We are honored to have you on this webinar. Thank you very much. So, may I start? So it's all yours. So we would like to understand why to be a parent. First question, basic question. Wow, great. Why to be a parent? That's a very great question. मेरा सबसे निवेदन है कि सब एक बार सोचें why to be a parent. जो भी पेरेंट हैं वो भी सोचें कि क्यों आपको एक पेरेंट बनना था, और जो बनने वाले हैं वो भी सोचें कि आपको पेरेंट क्यों बनना है। तब तक मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूँ। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir, absolutely. Yeah, thank you. Do anybody have an answer? कोई किसी के पास जवाब है why to be a parent? कोई जवाब देना चाह रहे हैं तो you are most welcome. हम ऑडियंस से इनवाइट करेंगे if anybody would like to give an answer, just whatever is coming. See, there is nothing right and wrong.
जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, why to be a parent? Yeah, if you are not answering, great. सोच जरूर रहे होंगे क्यों पेरेंट क्यों बनना है. So with this slide, let me say you कि there is no perfect parent and nobody can be a perfect parent. And we can only develop ourselves to become a better parent. हम जो भी हैं उनसे और बेहतर बन सकते हैं और हर पल हमें बुला रहे हैं कि यस वी कैन मेक अवरसेल्फ बेटर. हम और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं. तो वो बेहतर बनाने के लिए हमारा कुछ डिस्कशंस अभी होंगे, कुछ उसका साइंस कुछ उसका आर्ट हम आज डिस्कस करेंगे. क्या करना है, क्या होता है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, हाउ कैन वी डेवलप ब्रेन ऑफ ए किड, है ना. सो व्हाई टू बी अ पेरेंट, इसका पॉसिबल आंसर्स ये है. सबसे ज्यादा तो गुड न्यूज प्रेशर की वजह से हम पेरेंट बनते हैं. तो पब्लिकली देखा जाए, जनरली देखा जाए तो शादी हो गया तो सब पीछे पड़ जाते हैं कि गुड न्यूज कब दे रहे हो, गुड न्यूज कब दे रहे हो, है ना. तो एक तो वो वजह है ना. उस प्रेशर के वजह से हम पेरेंट बनते हैं. कुछ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, हाँ शादी के बाद पेरेंट बनना है, 1 साल में बनना है, 1.5 साल में बनना है. वो सोशल एंड कल्चरल नॉर्म की वजह से हम पेरेंट बनते हैं. कुछ बायोलॉजिकल अर्जेस की वजह से बनते हैं. और बहुत गिने चुने या बहुत ही कम होते हैं जो उसे एक सेंस ऑफ पर्पस मानते हैं, है ना. जैसे हमें पता है बहुत से बड़े बड़े ज्ञानियों ने और बड़े बड़े लोगों ने हमेशा पूछा है व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है. सो वन ऑफ द पर्पस इज टू बी ए पेरेंट, टू बी ए बेटर पेरेंट, टू बी ए गुड पेरेंट, जैसे भी आप उसे टर्म करें. बट टू बी ए पेरेंट इज ए पर्पस ऑफ लाइफ. सो कैसे भी आपने पेरेंट बने हो, लेट इट बी any pressure or self-decided or as a sense of the purpose of life, the moment you see your kid, that is there happens the love at first sight, the real love at first sight. अगर आप किसी को एक्सपीरियंस करना है तो of course you have to deliver a child and you have to become a parent, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होते हैं. जब आप खुद सोचिए एज ए फादर एंड मदर, जब आपने अपने बच्चे को पहली बार, पहली नजर जब उन पे पड़ा था तो आपको क्या फीलिंग था, आपका मन में, आपके मन में क्या चल रहा था. जैसे जैसे मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि जरूर अपने अंदर झांक के देखिए और इसका सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब जरूर अपने अंदर ढूंढिए. क्यों हम एक पेरेंट बने या क्यों हम एक पेरेंट बनेंगे. और ये लव एट फर्स्ट साइट, जो पहला पल क्या चल रहा था आपके अंदर, प्लीज एक बार अपने अंदर झांक के देखिए. और उस लव एट फर्स्ट साइट के बाद बहुत लोगों के अंदर शायद ये एक सवाल आती है, आपने क्या सोचा था, आप कैसे पेरेंट बनेंगे. यहाँ जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर खुद से जरूर पूछिए और खुद का जवाब जरूर ढूंढिए. What did you think or decide about what type of parent you will become? आप किस प्रकार के माता पिता बनेंगे, इसके बारे में आपने क्या सोचा या निर्णय लिया था. बस उसके साथ में एक सवाल, क्या आपके माता पिता की तरह. जवाब हाँ हो, ना हो, जवाब नहीं भी हो, तो जरूर ये एक सवाल खुद से कीजिए और अपना जवाब ढूंढिए अपने अंदर, खुद का जवाब. कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कोई गुड एंड बैड नहीं है. मुझे आप लोगों से एक चीज बताना है कि जैसे मैंने बोला पेरेंटिंग परफेक्ट पेरेंटिंग है नहीं. तो हम हेल्प कर रहे हैं कि आप अभी जो यू ऑल आर गुड पेरेंट, एवरीवन इन दिस
world is a good parent, they can make themselves better. There is always a option of making oneself better. अब खुद को और बेहतर बनाने का एक ऑप्शन हमारे सामने हमेशा खुला है, तो उस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए हमारे इस वेबिनार से हम कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर उसमें कोई भी सवाल में या कोई भी स्लाइड से आपको कोई ठेस पहुंच रही है तो जरूर ये समझिए, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, या फिर हमारे पार्ट में कुछ गलती हो सकता है या आपके पार्ट में कुछ गलती हो सकता है। एनीवे, वी आर मेकिंग आवरसेल्फ बेटर एंड वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। सो डू आंसर, क्या आप आपके माता पिता की तरह पेरेंट बनना चाह रहे थे? ह्यूमन एवोल्यूशन, हम क्या थे, अब क्या हैं? सोचिए, अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपने तक सीमित रखने का मेहनत या वो प्रयत्न कर रहे हैं कि बस वो मेरे जैसे बनना है, बस उतना ही बनना है, तो क्या हम तरक्की कर पाते? दूसरे जानवरों जैसे हम भी वहीं होते जहां पे हम पहले थे, लाखों साल पहले जहां पे थे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपके सारे एंसेस्टर्स जो भी हैं उन सबको अपना ग्रैटिट्यूड जरूर जताएं, क्योंकि ये लाखों सालों से जो उन्होंने उनसे बेहतर बनाने के लिए जो भी किया है हमारे साथ, है ना, उसका नतीजा आज हम हैं। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वी आर बेटर देन द पास्ट। खुद सोचिए, तो आगे और हमें भी उनको अगर कुछ देना है तो वही छूट देना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज हमें साइंटिफिकली एंड फिलोसफिकली या एज एन आर्ट हमें क्या क्या ध्यान पे रखना है, उस पे हम आगे बातें करेंगे। तो ये एक चीज मन में जरूर रखिएगा कि हम आज जो भी हैं बस पेरेंट्स की वजह से। द ओनली रीजन, द वन एंड ओनली रीजन इज पेरेंट्स। ये स्लाइड आपको बता रहे हैं, वहां पे हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बेस पे देखे, अब इधर इंडिविजुअल एवोल्यूशन के बेस पे देखिए। ये जब हम 29 दिन के होते हैं माँ के कोख में तो हम क्या होते हैं, और जब हम बड़ा होते हैं, हम जब अडल्ट होते हैं तब हम क्या होते हैं। हमारे शरीर के साथ हमारा मस्तिष्क भी बड़ा हो रहा है, और ये मस्तिष्क को और डेवलप करने में और बेटर बनाने में माता पिता सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरूर इस स्लाइड को अपने मन में उतारिए। 9 महीना जब वो हमें कोख में लेके घूम रहे थे तब भी वो हमें संभाल रहे थे, और हम जब बाहर दुनिया में आया तब भी वो हमें संभाल रहे थे, और हमें भी वही करना है बेहतर तरीके से। उसमें कहाँ कहाँ हम खुद में बेहतरी ला सकते हैं, यस वी कैन डू। पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का डेफिनेशन यहाँ पे है, आप गूगल करोगे तो ये डेफिनेशन आपको सबसे पहला दिखेगा। पालन पोषण बाल विकास की प्रारंभिक और निरंतर सर्वव्यापी पर्यावरण का गठन करती है। तो एक माता पिता अपने बच्चों को जो पर्यावरण के हिसाब में जो वो बना के देते हैं और जो हैं वो दैट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। आप खुद सोचिए, हम जब एक पौधे को खाद देते हैं या पानी देते हैं या उसको जमीन जब ठीक करके देते हैं तो वो पौधा अच्छी तरह उगता है। अगर वो खाद ही हम ज्यादा दे दिए या पानी ज्यादा दे दिए तो क्या हो जाता है, तो पौधा सड़ जाता है या अच्छा ग्रोथ उसको नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज उसका एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस पे उसे देना चाहिए, और वो बैलेंस किस चीज पे आधारित है वो जानने के लिए हर माता पिता हमेशा
ढूंढते रहते हैं कि ऐसे मैं क्या करूं मेरे बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा बेहतर बने, मेरे से बेहतर बने। दैट वुड बी ए ग्रेट आइडिया टू, मेरे से बेहतर बनाना, क्योंकि आजकल बहुत से हैं कि नेबर के बच्चे से बेहतर बनाना, उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरे से बेहतर बनाना। So this is a quote. If one wants to know what is correct for any species, one must know the inherent expectation of that species. जेन लिडलॉफ ने ये बताया था और इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। यदि कोई जानना चाहता है कि किसी भी प्रजाति के लिए क्या सही है, उस प्रजाति की आंतरिक अपेक्षाओं को जानना होगा। एक्सपेक्टेशंस, हर एक चीज एक्सपेक्ट करता है। हमारा शरीर को ही आप देख लो, खुद के शरीर को देख लो, आपका आंख चीजें देखने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोलने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रोट, आपका लंग्स हमेशा एयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका स्टोमक हमेशा खाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा ब्रेन भी हमेशा, हर एक बच्चे का ब्रेन भी हमेशा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। उस एक्सपेक्टेशन को जानना, जितना आप उस एक बच्चे का एक्सपेक्टेशन को जानोगे, उतना आप उस बच्चे को बहुत बेहतर बना पाओगे। क्योंकि दिस इज, ये विद बर्थ होता है। पैदा होने पर मुझे सांस लेना है, क्या मैं सांस ले लूं करके पूछते नहीं है। वो लंग्स, वो रोते हुए जब आते हैं बच्चे, तो वो फर्स्ट ब्रीथ लेते हैं, किसी से पूछते नहीं है। तो हमेशा हमारा बॉडी में इतना एक्सपेक्टेशंस हैं। सो इट इज ए यूनिवर्सल चीज की मन में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बच्चों के, उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। अगर इसका उदाहरण में कुछ पेड़ पौधों के या हम जानवरों में देखा जाए, तो जो फूड हम बिल्ली को देते हैं वो फूड हम मुर्गी को नहीं देते, है ना। अगर घर में पेट्स है तो अलग अलग जानवर का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होता है। कोई भी पौधा ले लो, उनका अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है ना। जो आम का पेड़ में जो हम करते हैं वो हम कटहल का पेड़ में वैसे नहीं करते हैं, अलग अलग, है ना। उनका रूट्स अलग होते हैं, उनका जो पानी लेने का, कैक्टस को पानी जितना चाहिए उतना आम का पेड़ को नहीं चाहिए। और जो ये भी सब एक एक पौधे का और एक जानवर का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं इस दुनिया से। सो ये एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह जानना है। एक बेहतर और बेहतर पेरेंट या माता पिता बनना है तो एक इंडिविजुअल को उनके बच्चों का एक्सपेक्टेशंस और बेहतर तरीके से जानना है। उसके लिए एकमात्र तरीका उनको निरीक्षण करना है। ऑब्जर्व योर किड्स, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, बिना पूर्वानुमान के उनका निरीक्षण करना। पूर्वानुमान रख के निरीक्षण करोगे तो आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। पूर्वानुमान नहीं है तो आपको वो दिखेगा जो वो चाह रहे हैं। सो ये एक चीज जरूर नोट करके रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस। सॉरी, स्लाइड ऊपर हो गया। सो ये एक्सपेक्टेशंस, हाँ, एक माता पिता को एक बच्चे में कौन कौन सा एरियाज में नोटिस करना है, क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना है। इस दुनिया में जो भी है वो हर एक इंसान इन 7 चीजों से जुड़ा हुआ है। अपना लॉजिक, युक्ति, न भाव, न शरीर, परिवार, जो भी काम हम कर रहे हैं। बच्चे के हिसाब में देखा जाए तो व्हाट एवर एक्टिविटी ही और शी डू, सोसाइटी, अपने समूह से, एंड वर्ल्ड, इस दुनिया से। तो ये 7 डायमेंशंस हैं जिससे हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति को
जो भी आदान प्रदान होता है इन 7 चीजों से होता है। तो एक माता पिता इन 7 चीजों में एक बच्चे के लिए खाद डालना बोले तो उनके लिए वो सीख देना, उनको एक्सपोजर देना, हर चीज इन 7 डायमेंशंस बेस्ड पे। दिस इज द वे, इस माइंडसेट से हमें देखना होता है। प्राइमरीली जब तक आप एक बार सोचिए लॉजिक और इमोशन बैलेंस्ड नहीं है तो बाकी का कुछ भी कोई यूज नहीं है, बाकी का कोई भी चीज के लिए हम कुछ भी कर लें। अनटिल एंड अनलेस हमारा लॉजिक, इंटेलेक्ट और इमोशन, हमारा भाव, ये दोनों को बैलेंस जब तक हम नहीं कर सकते और हम उसे बैलेंस रखते हुए, पेरेंट्स उसे बैलेंस रखते हुए बच्चों को भी वो बैलेंस रखना सिखाना है। प्राइमरी टास्क ऑफ ए पेरेंट इज टू टीच द किड्स टू कीप देयर लॉजिक एंड इमोशन बैलेंस्ड, उनका युक्ति और भाव को बैलेंस्ड रखना सिखाना है। तो ये लॉजिक और इमोशन मिलके माइंड बनता है। बॉडी, शरीर के लिए खुद सोचिए, शरीर के लिए आप कितना क्या क्या नहीं करते, नहाना है, ब्रश करना है ना, लोशन लगाना, शैम्पू लगाना, लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, कपड़े पहनना, हम क्या क्या नहीं करते हैं, सर्दियों में कुछ, गर्मियों में कुछ। एक बार आप सोचिए आप मन के लिए क्या करते हैं, खुद के मन और अपने बच्चों को मन और बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों के साथ। ये एक सर सवाल है। सॉरी Yes. सर, एक और बेसिक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ को हम किस तरह से समझें? Yes, we are coming to our next slide. Next slide में ग्रोथ के बारे में ही हम बोल रहे हैं। So again, I remind you, एक इंडिविजुअल का पूरा रिलेशन जो है वो इन 7 चीजों में है। इस 7 चीजों में हमें ग्रोथ की जरूरत है। मानव विकास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं भी सामने डाला हूँ। ग्रोथ, हर एक पेरेंट्स को ये ग्रोथ क्या है ये जानना है, क्लियर, उस पर एक क्लैरिटी होना है, स्पष्टता होना है, उनको स्पष्ट होना है कि ग्रोथ क्या है। विकास के लिए पर्यावरण से खुले आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। ग्रोथ रिक्वायर्स ओपन एक्सचेंज फ्रॉम एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण जो है उसमें हमारा सबसे कम नियंत्रण है। हमारा शरीर जो है उस पे हमारा पार्शियल नियंत्रण है और हमारा मन जो है उस पे हमारा पूरा नियंत्रण है। उस नियंत्रण का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ some restricting mindsets। तो जब एक माता पिता अपने बच्चों को उस पर्यावरण के साथ एक खुलापन और उनके साथ आदान प्रदान के लिए जब मना करते हैं, एक्सपोजर के लिए जब रोकते हैं, तब उनका ग्रोथ कम होता है कुछ जगह पे। जैसे एक टाइम था, अभी जो भी 40 से अबव वाला पेरेंट्स जो हैं, आप खुद सोचें आप कितना मिट्टी से जुड़े हुए थे जब आप छोटे थे, और आज हमारे बच्चों को हम कितना मिट्टी से जुड़ने के लिए छोड़ रहे हैं, कितना हम खेत में खेलने के लिए उन्हें छोड़ रहे हैं, कितना खेला था, कितना आम के पेड़ पे हमने चढ़ा था, कितना कीचड़ में या पानी में खेले थे। क्या आज हमारे बच्चे वो खेल रहे हैं? खुद सोचिए, ये सवाल खुद से कीजिए। जितना हम उनको रोकते हैं उतना ही उनका विकास कम होता है। तो ग्रोथ इज एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। विकास ऊर्जा का विस्तार और उत्पादन है। जितना, अब सोचिए हम जितना मिट्टी से खेलेंगे तो हमारा स्किन उतना ही टॉलरेंस बढ़ाएगी। हम देखते हैं आजकल बच्चे थोड़ा सा भी मिट्टी से खेल ले या थोड़ा भी पानी में या बारिश में नहा ले तो जुकाम अगला दिन या 2 घंटे में जुकाम आ जाता है। क्या हमें आए थे?
हमने कितना बारिश में, घंटों तक बारिश में नहाए थे, क्या हमें जुकाम आया था? सो जितना हम उनके लिए कंसर्न होके उनको पर्यावरण से रोक रहे हैं, पर्यावरण से घुलने मिलने से हम उन्हें रोक रहे हैं, उतना ही हम उनको टॉलरेंस कम कर रहे हैं। तो सर हम तो उन्हें फिर ग्रोथ से, या प्लीज। सर फिर इस बात से एक क्वेश्चन और निकलता है कि आज के समय पे सेफ्टी इज द अटमोस्ट कंसर्न ऑफ पेरेंट्स। तो अगर हम उनको ज्यादा लिबर्टी देते हैं, वी एंडेंजर देम। सो यू नो व्हाट, हाउ टू, यू नो व्हाट टू चूज, ग्रोथ और सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन? या ग्रेट क्वेश्चन, दिस इज, ये सवाल हर एक पेरेंट के मन में है ना? तो ग्रोथ के साथ में एक और चीज जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज प्रोटेक्शन। सो देखो, मेरा मैक्सिमम प्रयत्न ये रहा है कि एकदम मिनिमल वे में एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, है ना, खाली दो चीजों को देखना जरूरी, अपने मन में रखना जरूरी है। एक ग्रोथ हो गया और दूसरा प्रोटेक्शन हो गया। तो हम जो उन्हें बारिश में जाने से रोकते हैं, हमें लगता है कि हम वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम मिट्टी में खेलने से रोक रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बच्चों के दूसरे दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत एक अच्छा स्टडी है, और बहुत से बड़े बड़े चिंतकों ने ये एक चीज बताया है कि हर एक जानवर को पैदा होते ही आप पानी में डाल दो, आपको दिखेगा वो तैरते हुए दिखेगा। हर एक, कोई भी जानवर है, उसे पानी में डाल दो वो तैरेंगे। हम इंसान, है ना, क्या हमें नहीं आता तैरना? तो प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के चक्कर में या ऐसे प्रोटेक्टिव बनो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को उठा के पानी में डाल दो, मैं ये बता रहा हूँ कि इनहेरेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए, बच्चे से, बच्चा जब पानी के पास जाते हैं तो बोलते हैं अरे बकेट में पानी है मत जाओ, उधर कुआं है मत जाओ, उधर तालाब है मत जाओ। हम उन्हें जब ऐसे हम उन बचपन से ही उनको बोलना शुरू करते हैं, तो उनके मन में एक, उस पानी के साथ एक एसोसिएशन बैठ जाता है कि यस, है ना, पानी से डरना चाहिए। और जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं को हम मार पीट के डुबा डुबा के स्विमिंग सिखाते हैं। तो हम सबको, एवरी एवरी एनिमल, वो नेचर का एक वरदान है कि हमें भी आता है, हर एक एनिमल को स्विमिंग आता है, पानी में तैरना आता है। डर, ये प्रोटेक्शन के चक्कर में जो हम उनको एक एसोसिएशन उनके मन में जो डर पैदा करते हैं, उसके वजह से वो डर उन्हें रोकते हैं। सो लेट अस गो डीप, व्हाट इज प्रोटेक्शन? अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हम उनके पर्यावरण को बंद कर देते हैं। In order to protect our children, we close their environment. Again, all parents, please अपने अंदर झांक के देखिए। प्रोटेक्शन एंड, जैसे अनुराधा जी ने पूछा, सिक्योरिटी, क्या ये दोनों एक है? उनका सिक्योरिटी के लिए हम उन्हें जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उनका ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है? प्लीज सोचिए, कितने नोस हम उनको बोलते हैं जब वो आते हैं, तो हम उन्हें रोक रहे हैं। हाँ, बहुत से जगह पे इट इज रिक्वायर्ड, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नो मत बोलिए, या उन्हें, उनको क्या हम समझाते हैं कि किस वजह से, क्या हमारे पास इतना पेशेंस और टाइम है एज ए पेरेंट कि उस बच्चे को बैठा के हम बता रहे हैं दिस इज द रीजन बिहाइंड मी सेइंग नो टू यू, ये वजह है कि मैं आपसे ना बोल रहा हूं। क्या हम उन्हें समझाते हैं ये चीज? सो दिस प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ, प्रोटेक्शन के चक्कर में बहुत से जगह पे हम ग्रोथ को असर करते हैं।
निरंतर सुरक्षा प्रतिक्रिया जीवन को बनाए रखने वाली ऊर्जा के निर्माण को रोकती है। थोड़ा सा रिलेट करके देखो, जब यस या देयर इज अ क्वेश्चन। Hello, sir. Sorry to interrupt you in between. नो इश्यूज। Good morning. Good. Sir, मेरी daughter, she is about 16 years, and जैसा आप डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन, बीइंग अ सिंगल डॉटर, सर थोड़ा डर लगता है बिकॉज आजकल सर सिक्योर देखा जाए तो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और अगर जब एक ही बच्चा होता है तो और ज्यादा, मतलब देयर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। तो सर राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है, और यू नो शी इज इन लाइक हर टीनेज, और टीनेज में अपन कुछ भी बच्चे को बोलेंगे तो वो नो से ही शुरू करता है। सर आप कुछ बच्चा तो नो से जाके शुरू एक्सप्लेन कर करते लो। हैं फॉर कि एग्जांपल पेरेंट्स। आपको ड्राइविंग, नहीं, मैं आपसे ये पूछ सॉरी रहा था कि बच्चा नो से शुरू करती है कि आप नो से शुरू करते हो? सर फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अभी लाइसेंस नहीं होता है बच्चों के पास में, पर दूसरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो वो जो कंपैरिजन उनमें आता है। तो सर जैसे ही वी लिव्स लाइक थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं सिटी से, तो एक पूरा ब्रिज हाईवे रहता है, तो वी वर लाइक कि नहीं क्यों भी करना है, बिकॉज अभी सर बहुत ज्यादा नॉर्म्स आ गए, हिट एंड रन का केस और सब बहुत ज्यादा हो रहा है सर। एंड एक वो केस है, एक सर डॉटर के लिए प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द क्राइम रेट एंड ऑल। तो सर बहुत सारे कंसर्न्स पेरेंट्स को, मदर्स, फादर, सबको, पूरी फैमिली को रहने लग गए हैं। तो उसके लिए सर लिटरली ग्रोथ हैम्पर कर रही है। अब जब हम लोग किड्स थे सर, हमको इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे हमारे टाइम पर। तो सर वो जो चीज डिफाइन करना है ना, वो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एंड मतलब रोज लड़ाई होती है बिकॉज टीनेज बच्चे रहते हैं, तो उनके पास हर चीज के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, कुछ पेरेंट्स सर बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हैं, और उसके Yes. बीच में हमको लिंक बैठाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सर। मतलब you will not Yes. believe we are always in stress. Yeah, I can very well understand you. I am also a parent. I am having 3 kids. Okay. Yes. So I can very well understand. देखो, एक तो चीज ये है कि जो मीडिया एक्सपोजर आपका है, उस मीडिया एक्सपोजर ने आपके अंदर ये डर पैदा किया। आपके सामने ये कुछ भी हुआ क्या? सर फॉर आपके एग्जाम्पल सामने ये ड्राइविंग जो का चीज केस में, से, या हाँ सर, प्लीज। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग का केस है। लास्ट ईयर मेरे ही पीछे रहते हैं एक फैमिली, वो लड़की संडे को मॉर्निंग में गई, उसके ब्रदर से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने आई थी, और थोड़ी देर पहले ही हम कुछ बात कर रहे थे उनके बारे में, और समहाउ आधे घंटे बाद पता चला शी इज नो मोर, शी इज डेड, बिकॉज एक ट्रक ने उसको कर दिया। तो सर Yes. अपने ही सामने जब लोग केसेस होते हैं ना, तो आप और Yes. ज्यादा डर जाते हो। Yes. So, पहला चीज, आई अप्रिशिएट यू फॉर आस्किंग दिस वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसके साथ में मुझे ये जवाब देना है, आप बच्चे को वो लीगल चीजें सोशल नॉर्म्स के साथ में, है ना, एक इंडिविजुअल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, और एक नेशन का जो नॉर्म्स होते हैं उसे लीगल कहते हैं। Yes, So, sir, इसमें true. सेड और अनसेड है बहुत सी चीजें, नॉर्म्स। Sir. तो ये बच्चों को, ये इट इज 18 इज द एज फॉर टेकिंग लाइसेंस एंड देन यू कैन ड्राइव। ये एक चीज उनके मन में है नहीं है, तो वो हमारा गलती है कि कहीं ना कहीं उनका वो लॉजिकल डेवलपमेंट में हमने उनके साथ नहीं दिया। देखो, हम जब तक गलती हमारे, हर गलती नहीं, कुछ चीजें जब हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हम उसे कैसे सुधारें। तो पहला चीज, एक पेरेंट अगर डर रहे हैं, कभी भी हम ये डर के कोई अच्छा काम कर पाए हैं क्या? नहीं सर, वो नहीं है। आपसे पता है इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी है मेरे पास। स्टेप बाय सर स्कूल स्टेप वाले, बाय स्टेप चलते हाँ हैं। हाँ हाँ, सर फॉर देखो एग्जांपल हम अभी हमारे स्कूल्स में ही जो है चीजें, सॉरी ये मेरा और एक और क्वेश्चन है और इट्स लॉजिकल। सर स्कूल वाले प्लीज, बिलो 18 बच्चे को लर्निंग लाइसेंस पे अलाउ कर रहे हैं व्हीकल्स। तो हमारी बच्ची का बोलना है कि जब वो जा रही है लर्निंग लाइसेंस पे, तो आई शुड नॉट गेट अ लर्निंग लाइसेंस ऑफ माई ओन। सो ऐसे कि नहीं 18 ईयर्स अभी सर हिट एंड रन, एंड शी इज फॉलोइंग दैट बॉम्बे एंड पुणे वाला हिट एंड रन केस।
And she herself told me yesterday that mama, that boy has given a statement that my career is ruined, my profession is ruined, because he was driving and he was like drunk. और उसको मालूम है Yes. शी इज कैपेबल इनफ, बट सर कभी कभी तो बच्चे अड़ी पे आ ही जाते हैं अपनी, बिकॉज Yes, एवरीबडी वांट्स बच्चे- टू बी लाइक yes. डिफरेंट. Agree with you. The only way, and one of the way I would say is like to sit with them, talk with them, listen them, take all the logics they are giving you, take all the logic and listen them completely. You can give them, look, this is what legality says. You want me to break it? Do you want me to teach you to break these legal procedures, the rules and regulation, the set which constitution बना के हमारे nation के लिए दिए हैं, हमारे protection के लिए जो बनाए हैं? You want me to teach you like other parents who are breaking? Do you want me to teach you that? Very politely बैठ के यही एक चीज देखो, जितना आप पेशेंस रखोगे और जितना क्लियरली आप चीजें उनको बताओगे, ऑफ कोर्स आपका बच्चे भी बहुत लॉजिकल है, तभी तो उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा. द ओनली थिंग इज मे बी शी इज नॉट हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बीइंग ए डिसिप्लिन. जो डिसिप्लिन हम बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डिसिप्लिन, तो उसमें इस एरिया में देखो वो उनका इच्छा है, कार चलाना इच्छा है, तो आप उनको बोल सकते हैं आपको जितना लंबा जाना है, ऑफ कोर्स यू सिट इन द पिलियन सीट, वी विल टेक यू. आपको चलाने का जैसे 18 साल की हो जाएगी, द वेरी डे यू गो एंड अप्लाई. सो ये बार बार आपको उनके सवाल से आपको दुख नहीं होना है कि आई एम नॉट फुलफिलिंग, वहां पे आ रहा है ना ग्रोथ वाला. यू आर गिविंग हर एक्सपोजर towards legality and you are protecting her from breaking that legal cheese. So for that we have to keep the patience, we have to keep the patience and continuous. It will go around for weeks or months. गुस्सा और डर, पहला चीज तो मुझे आपसे ये कहना है कि आपके अंदर जो डर है उसे हटाएं. हाँ, दूसरे पेरेंट्स ने दिया, यस दे दिया, उन्होंने दिया, आप उन्हें बैठा के बोलो who is right, one who follows the rule or one who break the rule. उन्हें ये चीज उन्हीं से पूछिए. you question them in a polite way with the respect. Give them, I agree with you, I respect your need. Okay. So देखो, एक इधर मुझे एक बहुत बड़ा साइंस बताना है कि साइंस कहता है कि इमोशन ड्राइव एवरीथिंग फॉर ए चाइल्ड. इमोशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इज देयर. तो उनका जो वो जुड़े हुए हैं कार और ड्राइविंग से, आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए पहले. You appreciate for that urge in you to drive the car, but at the same time we are living in a system where rule says this. उन्हें समझाइए, बार बार समझाइए. जब तक वो नहीं समझ रहे, आप अपना पेशेंस रखिए और उन्हें समझाइए. सो जैसे मैंने बोला, देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग, मगर हमें ये देखना है कि उनका लॉजिक जो मैंने उसमें रिलेशन में बताया था, वी आर रिलेटेड टू लॉजिक एंड इमोशन, उसमें बैलेंस लाना सिखाना है. फॉर दैट हम पेरेंट्स को ही उसमें, वो एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं, 100 बार आप यही जवाब दीजिए बेटा के पोलाइटली, पेशेंटली, विद रेस्पेक्ट. तो कुछ चीजों में ट्रेन करने के लिए बार बार करना, रिपीटेडली वही चीज करना पड़ता है, सेम चीज रिपीटेडली करना पड़ता है. तो आप वही कीजिए, अपना बेटी को ज्यादा टाइम दीजिए उनके साथ बातें करने का. इस टॉपिक. ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. होप आई आंसर्ड, है ना. अगर ज्यादा है तो आप बाद में कनेक्ट कर सकते हैं. यस सर, थैंक यू. या सो निरंतर सुरक्षा प्रतिक्रिया जीवन को बनाए, है ना, सुरक्षा प्रतिक्रिया जीवन को बनाए रखने वाली ऊर्जा के निर्माण को रोकती है. कोई भी सस्टेन्ड प्रोटेक्शन, आप खुद सोचो, एक पौधा है और वो पौधे को हम धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर, है ना, एक स्टील का कप ला के रख दिए, 2 दिन बाद वो पौधा मुरझा जाएगा. तो जितना उचित उतना ही हमें सुरक्षा देना है, जितने से उनका ग्रोथ हैम्पर ना हो.
सो जो भी चीज हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज ये दो चीजों को रखिएगा, ग्रोथ और प्रोटेक्शन, ये दोनों का है ना वो संतुलन देखिएगा, बैलेंस देखिएगा कि हाउ मच इसमें क्या मैं वो ग्रोथ के लिए जो कर रहा हूं तो उन्हें किसी और से वो प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे, मीन्स प्रोटेक्शन रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हैं उनका ग्रोथ इनडायरेक्टली। तो ये अभी अभी मेरे पास एक पेरेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि उनके एक बेटा है, वो बेटा बहुत आग से खेलता है, उसे आग से खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमेशा आग से खेलता रहता है, घर का बहुत से सामान वो जला देता है। सो थोड़ा बातें हुई, उन जो बच्चे से भी बातें हुई, पेरेंट्स से भी बातें हुई, फिर बस हमने एक डिस्कस करके एक निर्णय लिया कि रोटी तो बनता है घर में, बच्चे से रोटी बनाओ, तो बच्चे को बोलो कि रोटी बनाए, उसमें वो रोटी वो आग में ही है ना, वो हम वो पतीला हटा के सीधे उसमें बच्चे को बस सिखा दो कि हाउ टू डू इट। दिस इज वन ऑफ माय रिसेंट एक्सपीरियंस में से मैं बता रहा हूँ। तो उस बच्चे को जब वो रोटी गैस में सेकना सिखाया तो इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स, वो आग में खेल सकता है एंड इट इज बिकमिंग ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो वो हमें ऑब्जर्व करना है, और हमारे सराउंडिंग में या हमारे दिनचर्या में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से चीजें हैं जिसका हम उपयोग करके उनका चाहत को पूरा कर सकते। सो एक ये अभी रिसेंट एग्जांपल था। सो हर एक पेरेंट जरूर ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है, ग्रोथ और प्रोटेक्शन का जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इस पे जरूर ध्यान दीजिए। क्या आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं, या इतना ग्रोथ के लिए आप कुछ कर रहे हो कि है ना बाद में वो कोई और गलत राह पे चला जा रहा है। ऐसे भी हैं है ना, पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल छोटे उम्र में दे देते हैं। तो मेरे से एक छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूँ, होपफुली हम सब ब्रश करते हैं, तो आपका प्रोमिनेंट हैंड कौन सा है, राइट या लेफ्ट में से एक होगा कोई प्रोमिनेंट हैंड, ज्यादातर राइट हैंड वाले ही होते हैं। क्या आपने कभी नॉन प्रोमिनेंट हैंड से ब्रश करने का मेहनत किया है, कोशिश किया है? उल्टा हाथ से ब्रश करने का कोशिश किए हो कभी? अभी बस सोच के देखो, या अभी एक बार ऐसे मोकिंगली करके देखो, उल्टा हाथ से ब्रश करना क्या आसान होता है? How easy it is to brush with a non-prominent hand. बस इतना सिंपल, ब्रशिंग इज ए वेरी सिंपल चीज, ब्रशिंग खुद सोचो ना, ये सिंपल से चीज हम उल्टा हाथ से जब करते हैं तो वो हमारे लिए कितना कितना मेहनत, कितना दिक्कत वाली चीज हो जाती है। सो आप खुद सोचिए, जब जनरली जो अभी दिखता है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? आजकल हम देखते हैं बहुत से है ना माता पिता, एक हाथ में प्लेट, बच्चे के हाथ में मोबाइल, उसमें एक कार्टून या कोई भी एक है ना म्यूजिक या गाना, और फिर खाना खिलाते हैं। और जब वो बच्चों को है ना वो 6 महीने से है तब से ये दिखाना शुरू कर देते हैं, और जब वो 2 2.5 3 साल के हो जाते हैं तो बोला क्यों मोबाइल देखती है, क्यों मोबाइल देखता है। तब तो उनको वही दिक्कत होती है जो हम नॉन प्रोमिनेंट हैंड से ब्रश करते हैं ना, तो जो दिक्कत हमें होती है वही दिक्कत उनको होती है, क्योंकि हमने वो उनके साथ एसोसिएट कर दिया खाने को मोबाइल से। और फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो गए तो ग्रोथ के लिए ही हम उनसे कर रहे थे, देखो कैसे वो ग्रोथ के लिए हम कर रहे थे, बाद में वो एक रेस्ट्रिक्शन बन के हमारे ही सामने खड़ा हो। तो वो इजीनेस, माता पिता अपना इजीनेस के लिए, बच्चा खा ले, उद्देश्य अच्छा है मगर करने का तरीका गलत निकल।
तो ये इंटरकनेक्टेड जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो जरूर ध्यान दीजिए कि आप जो ग्रोथ के लिए कर रहे हैं कहीं वो बाद में प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे, जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ को हैम्पर तो नहीं कर रहे हैं, ये जरूर मन में रखिएगा। और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कोट मुझे दिखा था, चिल्ड्रन मस्ट फील एन इन्विटेशन टू एक्सिस्ट इन आवर प्रेजेंस एक्जैक्टली द वे दे आर। एक बच्चा जैसा है या जैसी भी है वैसे हमारे सामने रहने का एक छूट हमें उनको देना चाहिए, वो जैसे भी हैं वैसे रहने दो हमारे सामने। अब खुद सोचो हम कितना उन्हें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो जो हैं वैसे हमारे सामने रहने के लिए। सो गिव देम दैट फ्रीडम। एक बच्चे को सबसे ज्यादा यही चीज चाहिए कि हाँ मैं जैसे भी हूँ वैसे मेरा मम्मी पापा मुझे स्वीकार रहे हैं, दुनिया नहीं स्वीकारे मगर हाँ मेरा मम्मी पापा स्वीकार। वो एक कनेक्ट उस बच्चे के अंदर आ जाए, वो फ्रीडम उस बच्चे के अंदर आ जाए तो आपको आपका बहुत सा डर हट, बहुत क्या नील हो जाएगा डर। Sir, एक question है, discipline is also Yeah. very necessary from an early age. So how we should Mhm. discipline our children? Yeah, okay. So as we said, एक्सपेक्टेशंस होते हैं हर एक लिविंग बीइंग, हर एक लिविंग सेल के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होता है। एक सेल के अंदर से एक ऑर्गन सिस्टम बॉडी माइंड हर चीज को एक एक्सपेक्टेशन होता है। सो इस एक्सपेक्टेशन और डिसिप्लिन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगेन डिसिप्लिन इज ए रूल, एक सेट ऑफ रूल्स कि हाँ, और वो जनरली सामूहिक चीज से होता है। जैसे मैंने रिलेशन बताया, 7 रिलेशंस जो बताया एक इंडिविजुअल का होता है, लॉजिक, इमोशन, बॉडी, वर्क एंड फैमिली, वर्क, सोसाइटी। एक्चुअली ये डिसिप्लिन कहाँ तक कहाँ के लिए होता है, हर एक चीज में होता है। मेरा डिसिप्लिन बॉडी के लिए डिसिप्लिन, फैमिली के लिए डिसिप्लिन, समूह के लिए डिसिप्लिन, वर्ल्ड के लिए डिसिप्लिन। दीज आर सेट ऑफ रूल्स। और ये डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन के लिए एक तो क्या वो सीखते हैं हम, डिसिप्लिन इज ए लर्नड प्रोसेस, डिसिप्लिन इज लर्नड, वो हम सीखते हैं। एंड ओवर द एज, हर एक उम्र में ये जो डिसिप्लिन जो है ये बदलता भी है, हर एक कॉन्टेक्स्ट में डिसिप्लिन बदलता है। सो ये प्रोटेक्शन के अंदर आता है डिसिप्लिन एक्चुअली। सो ये सोशल डिसिप्लिन, पर्सनल डिसिप्लिन, फैमिली डिसिप्लिन, इसे अलग अलग तौर से हमें उन्हें सिखाना होता है। एंड वहां पे ये फियर एंड लव वाला फैक्टर काम करता है टू मेक अवर चाइल्ड मोर डिसिप्लिन्ड। लव एंड फियर का एक बैलेंस होता है उधर, वो बैलेंस रख के। या somebody raised your hand please? Yes, Namrata. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मेरा बेटा है 10 इयर्स ओल्ड। Okay. तो उसके बारे में सर मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था। वो बहुत टॉकेटिव नेचर है उसका। Okay. उसको ये है कि बहुत बातें करना है, उसको नॉलेज उसको है अच्छा। तो वो जितना ज्यादा हो सकता है वो बोल बोल के सारी चीजें बताना। और फिर जब अपन बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा कम बोलना चाहिए, क्योंकि आप जितना कम बोलोगे, नॉलेज है ठीक है। और जैसे उसकी क्लास से भी कंप्लेंट आती है कि मैम जैसे मैं कोई सब्जेक्ट उसको एक्सप्लेन करती, कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको नॉलेज इतना रहता है कि वो बीच में क्लास के बीच में इंटरप्ट करके बोलता है, मैडम को बताने की कोशिश करता है कि मुझको क्लास में मतलब मेरा पूरा अटेंशन, पूरी क्लास मेरे ऊपर रहे, अटेंशन मेरे Yes, ऊपर रहे yes. बच्चों, है ना।
यस तो उसको ये यस चीज मैं सिखा चुकी हूँ कि बेटा ऐसा अपने को बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए क्लास में। मैम को भी मतलब टीच करने में प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी चीजें उसको मतलब। और फिर क्या होता है, जैसे अपन जो चीज उसको समझाते हैं, ज्यादा बातें करने के चक्कर में उसका ये रहता है कि उसको बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं रहती है। तो उसका ये जो नेचर है ना, मुझे मतलब बहुत ऐसा लगता है कि उसके कारण वो ज्यादा मतलब जो चीजें समझना चाहिए इस एज में उसको, वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती है, उसको दिक्कतें देती हैं आगे ग्रो करने में। आता है, एक्सप्लेनेशन फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें, पर कहाँ क्या बोलना है वो चीजें उसको याद नहीं रहती। यस उस पे यस मैं कैसे थैंक वर्क करूं मैं। हाँ, उस पे कैसे श्योर वर्क श्योर करूं सर, प्लीज एक्सप्लेन सर। जरूर जरूर बताएंगे, है ना। पहला चीज जी सर। आपका अभी का सवाल में दो चीज मुझे दिखा कि एक तो आपने ही बोला कि वो इतना समझदार है कि क्लास में वो टीचर पढ़ाते वक्त ही आंसर दे देता है, और लास्ट में आपने ये बोला कि वो इतना समझदार नहीं है कि वो ये समझ नहीं रहा है। देखो आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, कोई एक ही होते, समझदार और ना समझ एक साथ नहीं रह सकते। तो आपका बेटा है समझदार लॉजिकली, यहाँ पे इमोशनल वैलिडेशन में कुछ, है ना, वो अटेंशन जो दूसरों का चाह रहा है, दैट यू सेड इज राइट, वो कहीं ना कहीं दूसरों का अटेंशन चाह रहा है। तो वो कहाँ से शुरू हुआ, किस वजह से कहाँ से शुरू हुआ, है ना, ये सब आप उसके साथ पूछताछ कीजिए, या आप खुद सोचिए, आपको भी पता होगा कहीं तो कुछ इंसिडेंट होगा, कुछ ऐसे छोटा सा ट्रोमा हो सकता है ना, एक छोटा सा ट्रोमा हो सकता है जिसके वजह से, है ना, वो वुंड उसके अंदर है। और बच्चों को इमोशन मीन्स इमोशन इज द ड्राइवर ऑफ हर एवरी चिल्ड्रन। तो वो इमोशनल सीकिंग है, इट्स नॉट अ लॉजिकल पार्ट ऑफ दैट। तो आप लॉजिकली जो समझा रहे हो उसके जगह पे इमोशनली फुलफिल करो उसे। तो और देखिए यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यू शुड गो फॉर ए काउंसलर, है ना, क्योंकि आपने मैक्सिमम मेहनत किया होगा, आपका बातों से वो दिख रहा है कि यू हैव ट्राइड। तो जरूर एक काउंसलर का सहायता लेना अच्छा रहेगा, है ना, मेरे हिसाब में। क्योंकि बच्चा जो आपसे बोल रहे हैं और एक थर्ड जो काउंसलर से जब वो चीज बताएंगे तो उनको वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे काम करना होता है। एंड इट इज क्वाइट श्योर कि कहीं इमोशनल वैलिडेशन वो चाह रहा है, इसीलिए अटेंशन सीकिंग। ओके Sir, I would सो also like to add जी one सर, thing. थैंक यू सर। Namrata हाँ ma'am, you should also get your child assessed because I think उसका IQ level भी assess करने की जरूरत है. If he is so intelligent and logical कि वो अपनी क्लास के लेवल पे, कई बार बच्चे होते हैं they are super talented, कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं. So आप एक असेसमेंट भी जी करवाइए कि मैम। उसका IQ कितना है. जी सर। जी So मैम। that is a counselor can help you with that. That will really help you. यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। यस वेलकम। Yes. दुर्गा मैम प्लीज पूछिए दुर्गा। बोल रही हूँ। आएंगे आवाज। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, तो 2 बच्चों में आपस में ऐसा होता है कि इसके लिए मम्मी मेरे को प्यार करती है, मेरे को नहीं करती, इसके लिए ये करती है, मेरे लिए ये नहीं करती है, इसको दवाखाने ले जाती है, मुझे दवाखाने मुझे खुद ही जाना पड़ता है। ऐसा यस क्यों होता है उनके आपस में? माँ के लिए तो सभी सब बराबर होते हैं, वो चाहती है, समझती है कि भाई हाँ ये जिम्मेदारी है, दवाखाने जा सकता है तो वो जाए, जो नहीं जा सकता है उसके लिए मैं जाऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं आपसे बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है ये। देखिए आप माँ हो, अगर आपका बेटी अभी माँ नहीं है, या आपका बेटा जो भी है वो माँ नहीं है, वो पापा नहीं है, तो हम जो समझ रहे हैं मैं माँ हूँ, वो कैसे समझेंगे, वो बने ही नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए ही नहीं। और ये जो नॉर्मली दिखता है कि, है ना, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है कि यार उसे समझना चाहिए मैं एक माँ हूँ। कैसे समझेंगे, वो बने ही नहीं, विद एक्सपीरियंस ही वो आएगा ना, वो एक्सपीरियंस उनको है नहीं। फर्स्ट, दूसरा, ये जो सिबलिंग राइवलरी जो होते हैं उसका बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं सिबलिंग राइवलरी का, है ना। तो एक अगेन कहीं एक जगह पे हो सकता है कि आपने उनका कोई एक इच्छा पूरा नहीं किया हो और दूसरे का कर दिया, वो सिचुएशनल, उस कॉन्टेक्स्ट पे आपने किया होगा, शायद वो ही उचित होगा, मगर उस बच्चे को वो नहीं पता है। देखो इसमें भी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक
क्लाइंट आए थे, बहुत ही ओड केस था वो, बहुत ओड केस। मुझे बहुत हैरान हुआ कि वो 34 साल की थी, वो बोल रही थी कि मेरे माँ से के प्रति मेरा जो भावना है, प्यार नहीं आ रहा है मुझे, समथिंग इज ब्लॉकिंग मी। वो मैं जो चाह रही हूँ, अंदर से चाह रही है, मगर वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मैं वो। तो हमने पहले बहुत सी चीजें डिस्कस किया, एंड एक बार हिप्नोसिस पे हम गए थे, तो शी सो वन थिंग कि मेरा भाई को, है ना, मम्मी खाना खिला रही है। मैं उनसे पूछा उनका उम्र क्या है, मतलब 3-4 साल की है। बस 3 या 4 साल के बच्ची ने ये देखा कि माँ, है ना, अपने भाई को अपने गोद में रख के खाना खिला रही है और इसे टेबल पे छोड़ दिया। वो एक पिक्चर। फिर इस पे मैंने बहुत से बुक्स पढ़े, तो पता चला कि ये जो बच्चे होते हैं ना, तो ये 2-3 साल के होते हैं, सब उनका सबसे ज्यादा सिनेप्सिस खुला एक्टिव रहते हैं, सब कुछ अंदर जाता है, उनके मन में जाता है, उनका अर्थ नहीं बनता है उनके अंदर। अर्थ वो बड़ा होके उसमें असाइन करते हैं। तो ये साइंटिफिक चीज बोल रहे कि जो भी वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान, सब कुछ उनके अंदर जा रहा है, ऐसे इंफॉर्मेशन, अर्थ बाद में जाके जुड़ता है। तो ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, उसकी वजह बहुत से रीजंस हो सकते हैं, है ना। उस दिन का, उस हिप्नोसिस में वो जो उनका पिक्चर मन में दिखा, उसके बाद जो सजेशंस हमने दिए, थोड़ा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किए, जस्ट विद इन 2 वीक शी सेड नाउ आई एम फाइन, आई कैन एक्सप्रेस, आई कैन वर्क। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे, हमें लगे कि ये कितना सिल्ली है। नथिंग इज सिल्ली एंड नथिंग इज सीरियस। नहीं, वो तो इमीडिएटली देख के बताई ना कि भाई इसको खुशबू को आप लेके गए दवाखाने, मेरे को भी तकलीफ थी लेकिन मुझे खुद ही जाना पड़ा। मैंने उसको या बताया तू जा सकती थी दुनिया का, मुझे कहती तो मैं तेरे को लेके चलती। खुशबू मेरे को बोलती है कि भाई आप मेरे साथ चलो, आप तो बोलते ही नहीं हो कि चलो, और बड़े हो आप जा सकते हो, तो मुझे लगता है मेरी यस, जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। तो वहां पे उनका जो इमोशनल रिक्वायरमेंट था वो पूरा नहीं हुआ। मैं बोला ना, वो कॉन्टेक्स्ट होता है। देखो, हम, वी एवरीवन इज ए गुड पेरेंट। तो यहाँ से आपको एक सीख मिली है कि उधर कुछ और करते तो ये नहीं होता। तो वो कुछ और उस वक्त में आपको जानकारी नहीं था, तो खुद को भी ना कोसे, जो हुआ सो हुआ। अब कैसे बेहतर बना सकते हैं, बस वो हमें देखना है ना। वो बार बार उनको वो बताते रहिए कि देखो, जो भी हुआ ऐसे हुआ। आप वो एक चीज आप रिपीट करोगे ना, तो जरूर वो ही होगा आपके मन में। तो जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितना, है ना, तो उतना ही वो ही इम्पैक्ट होना है। सो आप बताते रहिए अपने बच्ची को कि दिस वाज व्हाट, मेरा इंटेंशन ये था और मेरा फीलिंग यही है, अब भी आपके लिए ये फीलिंग है। ये बार बार बताते रहिए जब तक उनके मन में वो बैठ ना जाए। सो या, सो फियर एंड लव, इसमें डर जो होता है, इसमें मैं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर खाली 2 डर होता है, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउड साउंड। गिरने का डर और बहुत जोर की आवाज का डर, 2 ही डर होता है। अगर अभी हम अपने अंदर झांक के देखें तो आपको कितना डर दिख रहा है। सब अपने अंदर झांक के देखें कि कितना डर दिख रहा है आपको, कितना डर से भरे हुए हैं हम। ये सब कहां से आता है? इनफैक्ट आज के दुनिया में इवन प्यार से भी डरना शुरू कर दिए हैं ना। खुद अपने अंदर देखिए, प्यार से भी डरना शुरू कर दिए हैं। सो love is nothing other than freedom. Love is nothing other than freedom. Fear is nothing other than restriction. और वो ग्रोथ और प्रोटेक्शन से ये जुड़ा हुआ है। एंड डिसिप्लिन कम्स इन बिटवीन, है ना। विद डिसिप्लिन वी कैन डू द थिंग्स इन ए सोशली, पर्सनली, है ना। जिस जहां पे हम है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब में चीजों को करने के लिए डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इज
हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, लर्न लर्न लर्न। हम हमेशा लर्निंग लर्निंग लर्निंग, एक लर्निंग वर्ड को यूज करते हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे, उसके साथ में अनलर्न और रीलर्न को भी इंपॉर्टेंस दें। सीखे हुए चीज को, है ना, उससे हटा के दूसरे नए तरीके से सीखना, वो कॉन्टेक्स्ट, हर एक पल के हिसाब में चीजें हमें अलग अलग तौर तरीके से करना होता है। सो अभी ये लर्निंग के साथ में अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, इस पे भी इंपॉर्टेंस दें। डिसिप्लिन इज ए फैक्टर विच हैज टू बी चेंज्ड विद कॉन्टेक्स्ट। वो फिक्स्ड नहीं रखना है। कभी डिसिप्लिन फिक्स्ड हो जाते हैं तो वो हमें फियर की ओर ले जाते हैं। डिसिप्लिन इज नॉट फॉर फियर, इट इज फॉर ओपननेस, इट इज फॉर डूइंग थिंग्स राइट। तो वहां पे फ्रीडम, लव काम आता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्रेस योर लव। लव आजकल मेटीरियलिस्टिकली एक्सप्रेस किया जाता है, चॉकलेट के तौर से, मोबाइल के तौर से, है ना, गाड़ियों के तौर से, बुक्स के तौर से। थोड़ा सा, है ना, जेस्चर और कम्युनिकेशन में भी प्यार लाइए। कल मेरा बेटी 4 साल की है। कल शाम को मैं उससे एक सवाल किया था कि बेटा क्या आप मम्मी पापा के साथ खुश हो? तो बोला, हाँ खुश हूँ, है ना। मैं पूछा उनसे कि किस वजह से खुश हो? उसने बोला, आप मुझे प्यार करते हो, आप दोनों मेरे से प्यार करते हो। मैं बोला, आपको कैसे पता चलता है कि ये प्यार है? उसने वही बोला कि यू किस मी, यू हग मी, यू होल्ड मी। शी डिडंट से कि यू गेट मी चॉकलेट। शी, मुझे कल बहुत खुशी हुआ। एक्चुअली ये पेरेंटिंग के प्रेजेंटेशन जब मन में चल रहा है तो मैं उधर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एंड वो आंसर से मुझे पता चला। मैन आई सेड टू माय वाइफ, यस आई थिंक वी आर गुड पेरेंट, बेटर पेरेंट्स, है ना। सो दिस हैपेंड यस्टरडे। तो फियर एंड लव, है ना। And next comes, look, everything is getting stored in your brain. हर चीज इस ब्रेन को डेवलप करता है, ब्रेन में स्टोर होता है, ब्रेन, है ना, उसका परिवर्तन होते रहता है। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक बच्चे को जब हम पेरेंटिंग कर रहे हैं। सो कंसिडर व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग देम थ्रू ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन, जिसमें उनमें ये उनके ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एक चीज याद रखिए, बचपन में मैंने एक एग्जांपल दिया था, 3-4 साल के उम्र में एक बच्ची को जो हुआ था, उनका असर 32 साल में, 34 साल में दिखा। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चे को, है ना, इस तरीके से हम पालन पोषण करें कि उनके ब्रेन में वो ही जाए जिससे उनको फायदा हो। रेस्पेक्ट। हाँ सर, या रेस्पेक्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी आपसे कि प्लीज। sometimes they feel that if we overlove our children they might not respect us, and sometimes it does happen that children say hurtful things to parents. कई बार वो हमारा दिल बहुत दुखा देते हैं. Does it mean that we have lost their respect? नो, है ना, it means they want to respect us but we are not giving them the chance to respect. सो मेरा वहां पे आप लोग एक टिप है मेरा, ये टिप है कि जब भी हम उनसे बातें करते हैं, दुनिया में एक रूल है, गिव एंड टेक। ये गिव एंड टेक रूल मन में हमेशा याद रखें। जब भी आप उनसे बातें करते हो तो यू आर गिविंग दम, जब भी आप उनको देते हैं तो उनका उम्र से एक उम्र नीचे रहिए, -1, गो -1 व्हेन यू टॉक टू दम, है ना। उनके उम्र से एक उम्र नीचे, 1 साल नीचे जाके आप जब उनसे बातें करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल रेस्पेक्ट दम। तो ये एक माता पिता जा सकते हैं नीचे, क्योंकि वो माता पिता है नहीं, है ना, वो बच्चे हैं। बच्चे समझदार होना है, हमें करना है, होना है वाला हमारा एक्सपेक्टेशन है, वो हमारा डिमांड है ना। तो उधर तक हमें उन्हें पहुंचाने के लिए उनसे एक साल नीचे जाके उनसे बातें करिए और उनको सुनिए। तो जब हम सुनते हैं तब हमें ये लगता है कि यस, द अदर इज रेस्पेक्टिंग मी,
जब मेरे बात कोई सुनते हैं तब मुझे ये एहसास होता है कि हाँ वो दे आर गिविंग मी रेस्पेक्ट। तो जब आप उनको सुनते हैं तब +1 जाइए, अपना बच्चे का उम्र से +1 पे जाके सुनिए। खुद के उम्र में खड़ा होके आप सुनोगे, ऑफ कोर्स आपको जजमेंट होगी, आप वो नहीं समझ पाओगे जो बच्चे आपको समझाना चाह रहे हैं। ये एक छोटा सा टिप है, जब आप बातें करते हैं बच्चों से तो उनसे एक उम्र नीचे जाके बोलिए, और जब आप सुनते हैं उनको, पहले तो हम सुनते कम हैं, वो आदत डालिए कि हम सुने, है ना, जिससे उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। हम उनको सुनेंगे, बस सुनिए, उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, है ना, कि दैट इज द option we are giving, we are choosing the right way to, yes, look, this is the respect I am having for you. So वहां पे आप +1 पे रहिए। नॉर्मली 18, 20, 22, 30 साल का गैप रहता है बच्चे और पेरेंट्स में। +1 एंड -1 पे रहोगे, यू विल सी अ गुड डिफरेंस। और मैं फिर ये याद दिला रहा हूँ, एक बार नहीं, ये फॉर ए लॉन्ग टाइम आपको रहना है। I hope I answered your question. बस ये एक चीज जरूर याद रखिए, जब जो हमें प्यार करते हैं और वो जब हमें दर्द देते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है। When loved ones hurt, what happens? ये ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। और क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं। आप खुद एक बार अपने बचपन में जाके देखिए कि जब आप सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करते थे और उन्होंने जब आपको डांटा था तो आपके अंदर क्या सोच आई। वहां पे भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत है, और जिसका भी व्यवहार गलत की ओर जाते हुए दिखता है, जो अनहेल्दी व्यवहार जिनका होता है, उनके अंदर पहला सोच ये आता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे मम्मी पापा से किया और वो भी मेरे से प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे डांटा या मारा, मुझे कोसा, तो मैं कहीं खराब हूं, मेरे में कुछ खोट है, मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत किया। फिर उस दुख से वो एक ट्रॉमा बना लेते हैं, अपने आप को अकेलापन ले जाते हैं, फिर उधर से वो कौन से राह जाएंगे पता नहीं। तो इसलिए जब भी उन्हें कोई भी बच्चे को डांट रहे हो या कोई भी उनको हर्ट करने वाला है तो उनको रीजन भी बताइए, ये रीजन है कि मुझे ये करना पड़ा या मैं ये कर रही हूँ, या रेस्ट्रिक्शंस या जो भी पनिशमेंट्स कहते हैं वो हो रहा है, उसका रीजन भी बताइए ताकि उनके अंदर ट्रॉमा ना क्रिएट हो। So with that slide, I already exceeded the time, sorry। फिर भी सब लोग साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आया और मैं ये और अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग आगे भी हमारे वेबिनार में कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे, ओके, क्योंकि ये हर 2 हफ्ते में एक बार करने का हम सोच रहे हैं। आप लोगों का भी कोई सवाल है, कोई भी चीजों पे डिस्कस करना है, जरूर हमारे, है ना, ईमेल करिएगा और हर सवाल का जवाब हम देंगे। आगे के सेशंस में जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। यस, आई एम गिविंग बैक Session. Anuradha to you. The time is yours. We can conclude, as our children are evolving, we also have to evolve as parents. So on behalf of EdTalk, I would like to thank you, Ajit sir, for such an enlightening session. We would also like to thank Team Wellen who helped us organize this webinar. And at last, I would like to thank parents who became part of this webinar. And we hope you will join us in our next webinar where we will continue to explore art and science of parenting. We hope our session was enriching and you can connect with us anytime for personalized coaching and counseling. You can also follow us on all social media platforms. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you all. हम आगे के सेशंस में ये टॉपिक्स कवर करेंगे जरूर, है ना। जरूर जुड़े रहिएगा, मिलेंगे आगे। Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.